Hello students, how are you all? I hope you would be enjoying your studies at your home. Students, in this video, I am going to discuss what is banking system and what are the functions of our central bank. I have discussed in my first lecture on this same topic of macroeconomics banking system. What are banks called and how commercial banks are different from RBI, that is our apex bank. Students, as you know, there are two types of banks in any country, commercial banks and central bank. Commercial banks are those institutions that deal with the public for their profit maximization. These are not welfare institutions. These are meant to supply money in the economy and create credit by the way of different instruments that are set by RBI and the students. The RBI, on the other hand, is a supervisory body, means it is called an apex bank of India also, and it controls all over the supply of money as well as it ensures the uninterrupted supply of money in the economy, and it doesn't deal with the public directly, it deals to the public through commercial banks. And now in this lecture I am going to deliver you the ways uh, how RBI deal with the public through its functions. Students, it performs certain functions that ensures supply of money in the economy. First, it is a bank of issuing notes. Students, RBI is a mainly responsible body to issue currency notes throughout the economy through commercial banks. All types of notes are issued by RBI. So students, it is a responsible body to issue currency notes that are legal in the India. Okay, and then bankers to the government. Student, it performs a function as a banker to the government. जैसे कि कमर्शियल बैंक हमारे लिए बैंकर हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स कमर्शियल बैंक जैसे हमारे लिए बैंकर हैं, ऐसे ही RBI परफॉर्म्स a function as a banker to the government. So what it does for the government, it manage government's accounts like our banks, as commercial banks do the same for us, means it manages account of the government. Okay, next, buys and sells security as an agent. It works as an agent of the government. If government wants to sell its securities, it helps government to sell those securities in the market, in share market and to the other commercial banks. And students, it works as an advisor to the government. Whenever government makes its budget or makes other types of policies to regulate its to frame its budgetary policy, government seeks help from RBI. Then it advises government how to tackle economic issues and how to frame those policies that are very important to the country. So it frames policies to regulate money supply in the market. So students, you see how it does what it does as a banker to the government. It helps to manage account of the government in our country as well as in cross countries, and buys and sells security as an agent on behalf of the government in open market operations. And students, it works as an advisor when government seeks its help in making its budgetary policies. And then students, bankers bank and having supervisory role. RBI plays as a banker to the banks. जैसे कि बैंक हमारे लिए बैंकर है, वैसे ही बैंक्स के लिए
आरबीआई एक बैंकर का रोल अदा करता है एंड साथ में सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है। मीन्स व्हाट इज इट्स रोल एज ए बैंकर? मीन्स इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड गिव्स some interest and gives some other facilities on behalf of these deposited and offer loans. Time to time it offer loans to commercial banks in case of their emergencies at its set conditions, as well as it works as a clearing house for all commercial banks. Clearing house function I will discuss it separately. Then students, how it performs its supervisory role? Means it is a supervisor to all banks in India. Students, it checks compliance to its directives by commercial banks. Means ये देखता है कि commercial banks ने जो उसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, उसके द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई हैं देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, या ऐसे ही मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, या इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन उसने जो पॉलिसीज बनाई हैं, ये देखता है कि क्या कमर्शियल बैंक उसको अप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या कुछ अनफेयर मीन्स तो नहीं यूज कर रहे, पब्लिक को प्रॉपर सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही, या कुछ हैंड्स में तो नहीं कंसंट्रेट हो रहा सारा पैसा। तो सच टाइप ऑफ सुपरवाइजरी रोल आरबीआई प्लेज। And students, its other important role is a lender of the last resort. Lender means दाता आदमी जो कर्ज देता है। मीन्स समटाइम्स क्या होता है, इट एडवांसेस लोन्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स, वैसे तो आजकल कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर के साथ जुड़ने के कारण उनके जो गॉडफादर्स हैं या जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, आजकल बैंक उनसे ही ज़्यादा लोन्स वगैरह लेते हैं। बट स्टूडेंट्स, जब भी सारे किनारे खत्म हो जाते हैं, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कहीं भी लोन अवेलेबल नहीं होता, तो लास्ट रिजोर्ट मतलब लास्ट जो एक बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड कर सकती है अपनी शर्तों के ऊपर, जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं उनके ऊपर। मतलब आरबीआई ने जो भी रूल बनाए हुए है लोन के लिए, ये मैं अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगी, मतलब उनके अकॉर्डिंगली ये इनको लोन प्रोवाइड करता है। कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट ज्यादा कर देता है, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर लाइबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उन लाइबिलिटीज को हैंडल करने के लिए उनको लोन लेना पड़ता है। तो वो लोन अल्टीमेटली उसको कौन दे सकता है? आरबीआई। आरबीआई हर हाल में उनको लोन देगा, नहीं तो बैंक्स को कभी कभी मर्ज भी कर दिया जाता है बड़े बैंकों के पास। एंड इट एंश्योर्स दैट बैंकिंग सिस्टम डजंट हार्म। अगर लाइबिलिटीज बैंक्स की ऐसे बढ़ती रहेंगी तो पब्लिक को उन्होंने आगे, पब्लिक के लिए वो आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अगर पब्लिक के प्रति वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते तो बैंकिंग सिस्टम में जो पब्लिक का एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है, दैट विल वायोलेट। तो आरबीआई की ड्यूटी बन जाती है कि वो उसको वायोलेट ना होने दे, लोगों का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट बना रहे। दैट्स वाई क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इनको कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करने वाला एक अल्टीमेट लेंडर बन जाता है। एंड मनी मार्केट रिमेन्स स्टेबल। इसका क्यों और किस कारण ये लोन देता है? ताकि मनी मार्केट स्टेबल रहे, ना तो मनी ज्यादा रिलीज हो और ना मनी कम रिलीज हो। दैट्स वाई कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करता है। ऐसे स्टूडेंट्स, इसके और फंक्शन है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स whatever the currencies of different countries, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। कमर्शियल बैंक्स के आरबीआई के पास 200 करोड़ का हमेशा एक रिजर्व रहना चाहिए, जिसमें 85 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज होती है, यानी कि जो अदर कंट्रीज की करेंसी है दैट शुड बी अवेलेबल विद द आरबीआई। ओके, तो आरबीआई उस एक्सचेंज को, मतलब जो फॉरेक्स है उसके पास जो रिजर्वियर है उसको अपडेट करती है। मार्केट रेट है करेंसी का, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी उस रिजर्व को अपडेट करता रहता है। मतलब जो 85 करोड़ का इसके पास हमेशा रिजर्व होना चाहिए, अगर वो ज्यादा हो जाता है तो क्या करता है आरबीआई? फॉरेन एक्सचेंज को सेल करना शुरू कर देता है मार्केट में।
और जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है उसको इस्टेब्लिश कर लेता है, सेट कर लेता है अपने अकॉर्डिंग। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट्स जब मतलब डिजायर्ड जो लेवल है फॉरेन एक्सचेंज का वो कम रह जाता है तो इसको परचेज करना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज मनी मार्केट से, तो वो अलग अलग रेट्स पे इसको मिलेगा, तो ये खुद ही उसको मैनेज कर लेता है। जो फ्लोटिंग हो रही है यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज जो बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसका रेट, तो ये उसको मैनेज करता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका फंक्शन है, इसका काम है। तो अगर मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सेस में सप्लाई बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाती है, अगर सप्लाई कम हो जाती है स्टूडेंट्स तो डिफ्लेशन हो जाती है। दैट्स वाई थ्रू इट्स फंक्शन ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम इट कैन मेक सप्लाई ऑफ मनी स्टेबल इन द मार्केट। और जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज मिलती है सबकी उसकी कस्टडी किसके पास है? आरबीआई के पास। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन is a clearing house facility. It gives commercial banks the facility of a clearing house. Clearing house means clear the checks against different banks in favor of different banks. मतलब कभी कभी क्या होता है, मतलब एक बैंक को चेक रिसीव होता है, सपोज बैंक ए है, ओके, बैंक ए रिसीव्स ए चेक ऑफ 50,000, इसको एक चेक मिलता है बट ऑन बिहाफ ऑफ बैंक बी, ठीक है। ये बैंक ए को चेक मिला 50,000 का, बट इसने ये चेक देना किसको है, किसके फेवर में चेक का है? बैंक बी के फेवर में। तो बैंक ए की लायबिलिटी बढ़ गई बैंक बी की तरफ, तो बैंक बी ने उसको क्लियर करके अपने कस्टमर के बिहाफ पे वो बैंक बी को देना है। ऐसे ही बैंक बी को हो सकता है बैंक सी का कोई चेक मिला हो। स्टूडेंट्स मान लो इसको बैंक ए का ही कोई चेक मिला है, सपोज ये 1 लाख रुपीस का है, ओके। अब क्या हो गया, बैंक बी की बैंक ए के तरफ लायबिलिटी बढ़ गई, इसने इसको 50,000 का चेक देना है, यानी कि उसका अमाउंट शेयर करना है, इसने इसको 1 लाख का चेक देना है। इट मीन्स बैंक ए की फेवर में 50,000 है, जो एक तरह से क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट शो हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसे तो बैंक्स आपस में इसी चीज में उलझे रहेंगे कि मेरे पास कितने चेक का है, किसकी फेवर में है, या बैंक दो तो है नहीं मार्केट में, तो बैंक बहुत सारे हैं। तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स आरबीआई के पास सब बैंक्स का क्या होता है, अकाउंट होता है, ओके। तो आरबीआई उन अकाउंट्स में बिना मनी को ट्रांसफर किए ये पैसे क्रेडिट कर देती है। अब आरबीआई क्या करेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन चलेगी कि बैंक ए रिसीव्स ए चेक इन फेवर ऑफ बैंक बी एंड बैंक बी हैज रिसीव्ड ए चेक इन फेवर ऑफ बैंक ए, तो वो क्या करेगा, सीधे बैंक ए के अकाउंट में 50,000 क्रेडिट कर देगा, काम खत्म। और दोनों में कोई डिस्प्यूट भी नहीं होगा बैंक्स में, और बैंक्स का जो काम है इट विल बी इजी, और उनके बीच में जो फंक्शनिंग है दैट आल्सो विल बी इजी एंड कंफर्टेबल, ओके। तो ऐसे स्मूथ ये बैंकिंग सिस्टम चलता रहता है। तो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी इज अ वेरी important facility given by RBI to the commercial banks as well as students. Its other function is control of credit. Control of credit means मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया सारा आपको कि व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। अब आरबीआई सिर्फ क्या है, नोट इशूइंग बॉडी है, तो ये पब्लिक के पास खुद जाके नोट नहीं बांटती है, इट डज दिस वर्क थ्रू कमर्शियल बैंक्स विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक्स। दैट्स वाई कमर्शियल बैंक्स ने अब उस क्रेडिट को, उस मनी को लोगों को क्रेडिट क्रिएट करने में यूज करने, यानी कि उनको लोन्स एडवांस करने हैं, लोगों को देने हैं लोन्स। तो किस तरह से उसको कंट्रोल करेगा स्टूडेंट्स, आरबीआई कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जैसे सीआरआर, एसएलआर, है ना, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर मीन स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे कमर्शियल बैंक्स ने क्रेडिट को क्रिएट करना है, मींस कंट्रोल्ड वे से, जैसे कि आरबीआई ने सेट किए हैं रूल्स, बाय दोज वेज बैंक हैज टू रिलीज मनी इन द मार्केट, क्रिएट मनी इन द मार्केट। अगर मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन है, पहले ही मनी सप्लाई एक्सेस में है, तो आरबीआई का एम क्या होगा, आरबीआई वांट्स टू लेसर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक्स इन द मार्केट।
तो वो क्या करेगी, CRR SLR वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, आप समझ लो थोड़ा सा बस इसमें। तो ये सारे जो अपने इंस्ट्रूमेंट हैं वो अप्लाई करेगा, अप्लाई करने से क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे अगर डिफ्लेशन है स्टूडेंट्स, तो यही इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई करके वो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो बैंक्स की है उसको कंट्रोल कर लेता है। You see students how important RBI is in our country. Okay, it performs so many these type of functions. Next lecture I will discuss what is monetary policy and what are these different instruments that I have give you a small picture through this lecture. I will discuss in my next lecture all those instruments that are used by RBI. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।